Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. So students, today we are going to complete the remaining part of the chapter Microorganisms, Friends and Foe. So students, in the previous class we studied about the useful microorganisms and their benefits. But today we are going to study about the harmful microorganisms. Okay, so generally harmful microorganisms causes diseases. So now we are going to study what are communicable diseases. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. So you already all know that what are pathogens. The disease causing microbes are called pathogens. So ये pathogens जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं किस मीन से एंटर करते हैं, जो एयर है जो ब्रीथ हम लोग लेते हैं, अगर वो एयर में कोई डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस होगा तो वो हम लोग को डिजीज़ कॉज कर सकता है. जो खाना खाते हैं, जो फूड खाते हैं, अगर उसमें वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हुए तो हमको वो इन्फेक्टेड कर सकते हैं. और ऑल्सो किस चीज़ से ट्रांसमिट होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन से हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ तो हो सकता है ट्रांसमिटेड, या फिर कोई एनिमल जो वो डिजीज़ कैरिंग पैथोजेंस लेके घूम रहा होगा तो उससे ही हम लोग को हो सकता है डिसीजेस. ओके, microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact, which are called communicable diseases. Okay students, so what are the examples of such diseases? It includes cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. So when a person suffering from common cold sneezes, find droplets of moisture carrying thousands of viruses and spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. तो अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है कोल्ड कॉमन डिजीज़, कॉमन कोल्ड से मतलब किसी को अगर सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड हुआ है, जब वो स्नीज़ मतलब जब वो छींक मारता है तो जो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलते हैं वो एयर में जो वायरस है वो फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं. और अगर वो उसी समय हम लोग उसी के पास हों, अगर उसको हम लोग फिर जब सांस लेते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर करके हम लोग को फिर डिजीज़ हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरियर्स. सो कैरियर्स किसको बोलते हैं? जो कोई भी इंसेक्ट्स या फिर कोई भी एनिमल्स जो डिजीज़ कैरियर्स होते हैं, डिजीज़ कैरिंग होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है कैरियर्स. सो इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट कैरी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंड ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर आर कॉल्ड कैरियर्स और वेक्टर्स. ओके, सच एज हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. हाउ डू हाउस फ्लाइज ट्रांसफर पैथोजेंस? हाउस फ्लाई कैसे ट्रांसफर करते हैं पैथोजेंस को? हाउस फ्लाई इज वन ऑफ such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their body. So अगर ये हाउस फ्लाइज कोई गार्बेज में, अगर वो जैसे गार्बेज में बैठता है या फिर कोई एनिमल एक्सक्रीटा मतलब एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर जो अगर बैठता है तो उसके अंदर जो पैथोजेंस है वो उसके बॉडी में क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं. ओके, सो आफ्टर देन व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस. तो इसके बाद अगर कोई फ्लाइज कोई फूड रखा हुआ है जो अनकवर्ड है मतलब कवर किया हुआ नहीं है, उसमें बैठता है तो उसमें वो पैथोजेंस ट्रांसफ़र हो जाता है. So whoever eats the contaminated food is likely to get sick. और जो भी वो खाना खाता है वो बीमार पड़ जाता है. So it is advisable to always keep food covered. Okay students, avoid consuming uncovered food items. So you should not consume any uncovered food items. Okay. Now here are the names of some carriers. Like the first one is dengue. This mosquito can spread dengue. Okay, and this mosquito is known as female AIDS mosquito. Okay, she is the carrier of the dengue virus called flavivirus. Okay students, and the second one is malaria. This mosquito can cause malaria, which name is female anopheles mosquito, which carries the parasite if malaria called plasmodium. Okay students, I hope you all understood this very well. So now we are going to study some human diseases caused by microorganisms. So here are some human diseases which are caused by the
microorganisms. Okay, so the first one is tuberculosis is caused by bacteria and the mode of transmission is air, and its preventive measures are here given that keep the patient in complete isolation, keep the personal belongings of the patient away from those of the others, vaccinations to be given at suitable age. तो अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो वो इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, मतलब उसको अकेले एक कमरे में अकेले रखना चाहिए, मतलब किसी के कांटेक्ट में नहीं लाना चाहिए उसको क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, तो हम लोग को वो पेशेंट के किसी भी कांटेक्ट में उसको नहीं लाना चाहिए. ओके, और वैक्सीनेशन तो ऑफ कोर्स उसको देना ही चाहिए. Same here, measles caused by virus and the mode of transmission is there and its preventive measures is as same as tuberculosis. Okay, and like chickenpox and polio are also caused by virus and their mode of transmission is air या फिर other than is water and contact or any contact with that infected person. Okay, causes chickenpox. So and their preventive measures are same as tuberculosis. Now we will study about the disease caused by some bacteria which is called cholera and typhoid. So their mode of transmission is water, food and water. Okay, so the preventive measures those we should take the maintain personal hygiene and good sanitary habits, consume properly cooked food and boiled drinking water, एंड ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो जब किसी को अगर कॉलेरा और टाइफाइड होता है तो वो उनको क्या करना चाहिए, पर्सनल अपना जो हाइजीन है वो बहुत अच्छा से मेंटेन करना चाहिए और सैनिटरी हैबिट्स जो है वो गुड होना चाहिए और जो प्रॉपरली कुक्ड फूड हम लोग को खाना चाहिए. जनरली स्टूडेंट्स टाइफाइड या फिर कॉलरा दीज आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. ओके, एंड ऑफ कोर्स उसको बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए और इसके लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल्स होते हैं. ओके, द थर्ड वन इज हेपेटाइटिस बी. ओके, विच इज कॉज्ड बाय वायरसेस एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर. सो ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. हम लोग को तभी क्या करना चाहिए, अपना बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी है उसको बॉयल करके पीना चाहिए और वैक्सीनेशन भी इसके लिए अवेलेबल होता है. द लास्ट वन इज मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मॉस्क्वीटो. ओके, which we also studied. Okay, अभी हमने वही पढ़ा जो कौन सा मॉस्क्वीटो हम लोग को मलेरिया कॉज कर सकता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्वीटो. सो प्रिवेंटिव मेजर इज यूज मॉस्क्वीटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्वीटो बट नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स. तो मॉस्क्वीटो को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करना चाहिए, ऑफकोर्स जो मॉस्क्वीटो नेट है उसको यूज़ करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए ताकि मॉस्क्वीटो ज़्यादा घर में ना आए, और कहीं पे उसका ब्रीडिंग मतलब उसका जो ब्रीडिंग रोकने के लिए उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, कहीं भी जो जमा हुआ पानी हम लोग को नहीं रखना चाहिए. अगर पानी वहाँ पे स्टैगनेंट हो गया तो वहाँ पे मॉस्क्वीटो अपना ब्रीडिंग कर सकते हैं. ओके, सो हमें कहीं भी वाटर कलेक्ट होते हुए जो सराउंडिंग्स में है वो कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. तो अब तक हमने पढ़ा कि ह्यूमन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं. सो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium called Bacillus anthracis. Okay, so एनिमल्स में भी कुछ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या है, देखो यहाँ पे कैटल डिजीज़ मतलब कोई कैटल में अगर कोई डिजीज़ कॉज होता है तो उसका डिजीज़ का नाम क्या है, एंथ्रैक्स. ओके, और वो कौन कॉज करता है, एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस. दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, foot and mouth disease of cattle is caused by virus FNDV or picorna virus. Okay, foot and mouth मतलब किसी के पैर में या मुंह में, कोई एनिमल के पैर या मुंह में अगर कोई डिजीज़ होता है तो वो एक वायरस से कॉज होता है. ओके, जो वायरस का नाम क्या है, पिकॉर्ना वायरस. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. तो अभी हम लोग एनिमल्स का पढ़े, ह्यूमंस का पढ़े, अभी हम लोग प्लांट्स में भी डिजीज़ होता है, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे.
So this is gonna be very interesting, student. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. Okay, so these are the plants which can have diseases. Okay, the disease reduce the yield of crops. तो ये disease का कारण crops का जो production है वो reduce हो जाता है. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ केमिकल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए. ओके, इसीलिए यूज़ करते हैं ना क्रॉप प्रोडक्शन में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब. तो यही माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए वो होता है. Here are some common plant diseases caused by microorganisms. Okay, students. So the first disease is citrus canker, which caused by a bacteria, and the mode of transmission is air. And you can see here the pictures also. Okay. The second one is rust of heat, which is caused by the microorganism fungi, and the mode of transmission is air or some seeds. Okay. The third one is yellow vein mosaic of bhindi, means okra, which caused by the microorganism virus, and the mode of transmission is insect. Okay, so ये जो पिक्चर्स है आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो जितने भी वीट का प्लांट है, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, तो इस सब का जो इस सब में जो हुआ है, ये जो जैसे कि लग रहा है इनके फोटो, इनका जो पिक्चर है आपको देख के जो लग रहा है, तो इनमें क्या हुआ है? डिजीज़ हुआ है. और किसने कॉज किया है वो डिजीज़? किसने किया है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो हुआ है. ओके, now we will study about what is food poisoning. Okay, so food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. Okay, तो आप सब कोई सुने होंगे कि कभी किसी या फिर किसी को हुआ भी होगा कि बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है या फिर बहुत पेट दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो आपको वो दवाई देंगे और बोलेंगे कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है. ठीक है, तो ये फूड पॉइजनिंग किसके वजह से होता है? ये फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है. ओके, और हम जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर वो किसी तरीके से सड़ गया है और किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो वो अगर वही खाना हम कंज्यूम करते हैं तो हमको ये फूड पॉइजनिंग हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो रिलीज़ कर देते हैं, और उसकी वजह से या फिर हम लोग को बहुत तकलीफ़ होता है, मतलब बहुत हम लोग का तबीयत ख़राब हो जाता है, और ये कभी कभार बहुत डेंजरस भी होता है और इससे मौत भी हो सकती है. तो हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई खाना है तो उसको हम लोग बचा के रखें और उसको सड़ने ना दें. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन. We need to preserve food because microorganisms that grow on food can sometimes produce toxic substances which are poisonous to us. If we consume this spoiled food, we can become seriously ill or die. Hence, we need to preserve food from spoiled. Okay? तो हम लोग को फूड प्रिजर्व क्यों करके रखना चाहिए? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर उसमें ग्रो कर जाएंगे तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे, जो हम लोग के लिए, अगर हम लोग फिर वो खाना कंज्यूम करेंगे, जो हम लोग के लिए एक पॉइजन के बराबर होगा. ओके, सो अगर हम लोग वो खाना खाएं तो हम लोग बहुत बीमार पड़ सकते हैं और हमारी मौत भी हो सकती है. इसीलिए हम लोग को फूड स्पॉइल्ड प्रिजर्व करके रखना चाहिए और उसको स्पॉइल्ड नहीं करना चाहिए. ओके, Now we will study about some chemical methods of preservation. So preservation का बहुत सारे methods होते हैं, तो हम लोग अभी भी वही methods पढ़ेंगे कि जिस तरीके से हम लोग कोई खाना को preserve करके मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं. ओके, the first is chemical method. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore they are called preservatives. तो salt से भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर कोई edible oils. जनरली हम लोग इसको हम लोग किसी अचार, अगर आपकी मम्मी ने कोई अचार वचार बनाया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये प्रिजर्व मतलब इसको ज़्यादा देर रखने के लिए वो क्या यूज़ की होंगी. वो ज़रूर तेल, एडिबल ऑयल्स यूज़ की होंगी और सबसे ज़रूरी नमक भी यूज़ की होंगी. ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ को
कंट्रोल में रखता है और नहीं होने देता है, मतलब खाना को प्रिजर्व करके रखता है। और इसीलिए सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स को प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं। सो वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। लाइक वी कैन ऑल्सो ऐड सम एसिड ऑल्सो, ओके, लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा bisulfite are common preservatives, okay. So these are also used in the jams and squashes to check their spoilage. तो हम लोग जो बाहर से जैम्स खरीद के लाते हैं, स्क्वाशेस खरीद के लाते हैं, तो उनमें भी कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है, जैसे कि ये केमिकल्स, ये जो एसिड है लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, ठीक है, उनका स्पॉइलेज चेक करने के लिए, ओके। Now we can also preserve the food by common salt, okay. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, turmeric, etc. तो common salt मतलब ऐसे नमक से भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। और जनरली नमक किस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है? मीट या फिर फिश को, ओके। तो उनको मीट या फिर फिश को जैसे कच्चा हम लोग को समझो 2 दिन के लिए रखना है, तो हम लोग उसको उसमें अच्छे से सॉल्ट लगा के रख सकते हैं, ओके। वहाँ पे सॉल्ट क्या करता है? बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है। और सॉल्टिंग हम लोग आंवला या फिर कोई कच्चा आम या फिर टर्मरिक है, ये मतलब हल्दी है, तो हम लोग उसको सॉल्ट मतलब अगर उसमें सॉल्ट लगा दें तो वो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होगा, ओके। नाउ हाउ कैन वी प्रिजर्व बाय शुगर? Jam, jellies and squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food, okay. तो जैम, जेली, स्क्वाशेस, इसमें हम लोग शुगर भी डालते हैं, ओके, प्रिजर्व करने के लिए। शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह ही काम करता है। वो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है खाने का, मतलब जैम और जेली का, उसको रिड्यूस करता है, मतलब रिड्यूस कम कर देता है, और जो बैक्टीरिया का ग्रोथ को कंट्रोल में रख देता है, नहीं होने देता है, ओके। और फूड को स्पॉइल भी नहीं होने देता है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्व किया जाता है खाना? यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड्स। सो ऑयल और विनेगर से भी स्पॉइलेज मतलब सड़ने से, पिकल्स को सड़ने से रोका जाता है, अचार को सड़ने से रोका जाता है, और ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके और ज़िंदा भी ना रह सके। और कुछ फ्रूट्स, मीट्स में भी, फ्रूट, फिश एंड मीट में भी ये ऑयल और विनेगर लगा के रख सकते हैं फॉर प्रिजर्वेशन, ओके। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Similarly, low temperature inhibits the growth of microorganisms. So student, this is a very important part. तो microorganisms का भी एक particular temperature होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग का होता है, हम लोग अगर बहुत गर्मी के तरफ चल जाए तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग को बहुत एक रूम है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हम लोग को अगर घुसा दे तो हम लोग वहाँ पे ज़िंदा ऑफकोर्स नहीं रह पाएंगे। और ऐसे ही हम लोग अगर बहुत ठंडा टेम्परेचर में चले जाए तो वहाँ पे भी हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। वैसे ही बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी सेम है, ठीक है। तो उन लोग का भी एक पर्टिकुलर ज़िंदा रहने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहीं पे अगर हम लोग कोई खाने का चीज़ सोचो या फिर कोई पानी ही सोच लो, उसको अगर बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सब मर जाएंगे। और वैसे ही अगर कोई बहुत ठंडा जगह है, जैसे कि फ्रिज में अगर हम लोग कोई भी खाना रख दे तो वो सड़ता नहीं है, जैसे हम लोग इसीलिए तो फ्रिज यूज़ करते हैं। तो फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है, और जो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, ओके। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. Pasteurized milk. The milk is heated to about 700 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. Okay? Pasteurized milk मतलब वो जो बैक्टीरिया है उनको सब हार्मफुल माइक्रोब्स को मार दिया जाता है। पहले क्या किया जाता है, मिल्क को 700 डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, और उसके 15 से 30 सेकंड तक ऐसे बहुत हीट किया जाता है, और
अचानक से उसको फिर चिल्ड एंड स्टोर्ड मतलब ठंडी जगह में उसको रख दिया जाता है। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और इसी की वजह से वो माइक्रोब्स का ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। ओके, नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग। ओके, अगर कोई चीज़ है तो उसको हम लोग स्टोरेज और पैकिंग करेंगे। तो हम लोग इन द प्रीवियस चैप्टर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दिस स्टोरेज। ओके, तो स्टोरेज हम लोग का लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो वो चीज़ें जो मतलब एक इतने सारे वास्ट स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है तो उनको स्टोरेज करके, प्रॉपर स्टोरेज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बचा के रखना भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। नहीं तो अगर इतना फसल उगाएं लेकिन सब खराब हो गया तो इसका मतलब मेहनत बेकार गया। तो इसी चीज़ के लिए स्टोरेज और पैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। तो these days fruits and vegetables and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। तो आजकल क्या होता है, इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक बहुत ही एयर टाइट मतलब जहाँ पे एयर नहीं है, सील्ड किया हुआ पैकेट में आजकल ये हम लोग को मिलते हैं ताकि वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो ना करें। Now this is a very important part of this chapter, student. We will study about the nitrogen fixation. Okay, nitrogen constitutes 78% of our atmosphere. In living organisms it is found in proteins, nucleic acid, chlorophyll and vitamins. So नाइट्रोजन, हमारे जो एयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट कंस्टिट्यूट है, मतलब 78%। ओके, सो 78% नाइट्रोजन है हमारे ये पूरे एटमॉस्फेयर में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर नाइट्रोजन किस चीज़ में पाया जाता है, प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड में, क्लोरोफिल में एंड विटामिन्स में। ओके, atmospheric nitrogen cannot be used directly by plants and animals. It gets fixed by either lightning or natural nitrogen fixers. Rhizobium bacteria is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants और वी कैन से पल्सेस। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब गैशियस नाइट्रोजन को। तो उसके लिए उन लोगों को कभी कभार सॉल्यूबल नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के लिए हम लोग पढ़े भी थे कि राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स gaseous nitrogen into soluble nitrogen, okay, which is present in the roots of the leguminous plants. Okay, Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans, peas, with which it has a symbiotic relationship. Okay, I think ये आप सबको पता ही है क्योंकि पिछले चैप्टर में आप सब पढ़े हैं, तो आशा करती हूँ कि आप सब ये समझ चुके हैं। Now here there are some diagrams, like there are two nitrogen fixing bacteria. Okay students, the first one is Rhizobium bacteria and the second one is cyanobacteria or we can say blue green algae. Okay, तो अब तक हम लोग को राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में ही पता था, तो अभी हम लोग और एक नया बैक्टीरिया जाने हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। तो क्या है वो, सायानोबैक्टीरिया और वी कैन से ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स of the leguminous plants, and here is the presence of blue green algae or we can say cyanobacteria which helps in nitrogen fixation. Okay, so here is a nitrogen cycle. तो ये क्या है, एक नाइट्रोजन साइकिल है। कैसे, मतलब नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होके फिर अपटेक, मतलब फिर वो एनिमल्स लेते हैं और प्लांट्स लेते हैं। तो ये कन्वर्सेशन का पूरा एक साइकिल है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और इसका जो स्टेप्स है, द फर्स्ट वन इज इट इज़ अ साइकिल, देयर इज नो फर्स्ट वन, मतलब ये एक चलता ही रहेगा वाला मतलब स्टेप है विच नेवर एंड्स। ओके, so here you can see that the uptake by plants and uptake animals eat plants, the nitrogen is waste from excretion and death ultimately leads to compounds of soil in the nitrogen. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन जो है, फिर यहाँ से और एक है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में करते हैं। तो बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स जो सॉइल में जाता है। फिर क्या करता है, बैक्टीरिया टर्न्स द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस फॉर्म और देन इट इज अपटेक बाय
प्लांट्स एंड एनिमल्स इन प्लांट्स एंड फिर से नाइट्रोजनियस वेस्ट जो हम लोग के एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं तो वो एक नाइट्रोजनियस वेस्ट भी होता है उसमें. ओके, सो इसके जो स्टेप्स है वो अभी हम पढ़ेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप. दीज आर ऑल द स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. ओके, द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो पहला स्टेप क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है. सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक rhizobium, azotobacter and blue-green algae which is present in the soil into compounds usable by plants. Okay? तो फर्स्ट क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, ये जो बैक्टीरियाज है लाइटनिंग के द्वारा या फिर कोई बैक्टीरियाज हैं लाइक लाइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. द सेकेंड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन. So ammonia conversion into nitrites by nitrosomonas and further conversion of nitrites into nitrates by nitrobacter. Plants take up nitrogen in form of ammonia or nitrates. तो उसके बाद वाला स्टेप क्या है, नाइट्रिफिकेशन का स्टेप है. तो उसमें उस स्टेप में क्या होता है, अमोनिया जो होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है. और कौन कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने में हेल्प करता है नाइट्रोसोमोनस. ओके, और उसके बाद क्या होता है, ये जो नाइट्राइट्स है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है. ओके, नाइट्राइट्स जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा. उसके बाद ये जो प्लांट्स जो हैं उसके बाद नाइट्रोजन लेते हैं जो कौन से फॉर्म में होता है, अमोनिया या फिर कोई नाइट्रेट फॉर्म में होता है. ओके, तो अमोनिया और नाइट्रेट फॉर्म को हम एक तरह से बोल सकते हैं सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. ओके, नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में था, एटमॉस्फेयर में था, उसको कन्वर्ट करके हम लोग अमोनिया और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके ही वही वाला जो फॉर्म है वो लेते हैं प्लांट्स. ओके, द थर्ड स्टेप इज एसिमिलेशन. रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स फ्रॉम सॉइल्स एंड प्लांट्स. Further use them to synthesize proteins and another compounds. So इसके बाद जो एसिमिलेशन के स्टेप में क्या होता है, जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो फिर ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है जो अमोनिया और नाइट्रेट्स है उनको एब्जॉर्व करते हैं. एब्जॉर्व करने के बाद क्या सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ओके, और जो अदर कंपाउंड्स है वो भी वो सिंथेसिस करते हैं. तो यही वाला जो स्टेप है इसको क्या बोला जाता है, assimilation. ओके, आफ्टर दैट एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स. उसके बाद जो प्लांट्स को प्रोटीन्स तो मिल गया है, मतलब वो प्रोटीन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जितने भी अदर कंपाउंड्स है वो सब बना लिए हैं. उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स को कौन खाता है, अल्टीमेटली एनिमल्स खाता है. ओके, तो जब एनिमल्स ये प्लांट्स को खाते हैं तो उनको भी ये प्रोटीन्स और जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है उनके बॉडी में भी वो चला जाता है. तो ये एक स्टेप हो गया. उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या है, अमोनिफिकेशन. सो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन. तो इस एमोनिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जब ये प्लांट्स और फिर या कोई एनिमल मर जाता है तब क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगी जो सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो उन सबको वो जो उनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट था उनको कंपाउंड्स में फिर कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है. और जो फिर अगर उसके पास अगर कोई प्लांट्स है तो उस प्लांट्स को वो ज़रूरत हो जाता है फिर, मतलब वो उसको फिर यूज़ कर लेता है जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को जो कन्वर्ट करता है कंपाउंड्स में. तो अगर कोई प्लांट्स उसको ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए अब्जॉर्व करके उसको यूज़ करने लगता है. कैसे, मतलब ये यूज़ क्यों करता है एक्चुअली, क्योंकि उसमें भी तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, कंपाउंड्स तो उसमें भी प्रेजेंट है. तो अल्टीमेटली उन लोग को चाहिए ही, जो राइजोबियम बैक्टीरिया ये सब देते हैं. लेकिन ये सब के वजह से भी, मतलब ये जब मर जाते हैं तो इनके अंदर भी जो होते हैं कंपाउंड्स, तो उनको भी अगर वो एब्जॉर्व कर ले तो उनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट और कंपाउंड्स की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है. ओके, नाउ देन द सिक्स्थ स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन. तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज़ रिलीज्ड बैक इन द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया.
उसके बाद क्या होता है, तो अब तक हमने यही पढ़ा कि सॉल्युबल नाइट्रोजन में कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होके प्लांट्स लेता है, फिर एनिमल्स खाते हैं, फिर अगर वो जब एनिमल्स या फिर कोई प्लांट्स ऐसे मर जाते हैं तो फिर दूसरे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करके खा लेते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है अभी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे बनता है, मतलब ये जो प्रोसेस है ये पूरा साइकिल होके फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनता है। तो जब ये नाइट्रेट्स जो है जब नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किए जाते हैं तो ये कौन कन्वर्ट करता है, ये भी जो कन्वर्ट करता है एक बैक्टीरिया के द्वारा ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि गैसियस नाइट्रोजन सॉल्युबल में कन्वर्ट हुआ, सेम उसी तरीके से सॉल्युबल नाइट्रोजन गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है बाय सम बैक्टीरिया, ओके। what is the name of that bacteria, like Pseudomonas, okay। तो इसी के वजह तो हेंस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो पूरा एक साइकिल चलता है तो इसी के वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लस सॉल्युबल नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन का जो एक परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है just because of this cycle. So this is a very important cycle which is very essential for plants as well as for us also, okay। सो एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है चैप्टर का, ये पार्ट आप सब अच्छे से पूरा पढ़िए, बुक से पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सो द चैप्टर हैज़ एंडेड, नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज। हियर आई हैव प्रोवाइड यू द आंसर्स, ओके। द क्वेश्चन नंबर ऑफ 5 इज what are the major groups of microorganisms? You all know that, so here the answer is written here. You have to just write it in your fair copy, okay। The question number 7 is write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. So here I provide you some answers, like the 8 points are there at the air usefulness of microorganisms I have written here. You just read and write it in your copy, okay। Question number 8 is write a short paragraph on the harms caused by microorganisms. You have to write a short paragraph कि harmful microorganisms कैसे हम लोग को क्या करता है, मतलब उसका जो काम है वो क्या है, वो हम लोग को वही लिखना है कि वो हार्म हम लोग को किस तरीके से हार्म करता है, ओके। यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ विच आई हैव रिटन, यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी। सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज़ एंडेड। I hope you all understood this chapter and it is a very interesting chapter because microorganisms is a microscopic organisms जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई किए कि कैसे वो क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोग को हेल्प करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो स्टूडेंट्स, डू ऑल द नोट्स इन योर फेयर कॉपी। जो भी नोट्स लिखाया गया है आप अपने फेयर कॉपी में ऑफ कोर्स लिख लीजिए। लर्न ऑल द नोट्स एंड रिवाइज द चैप्टर थॉरली। जो जितने भी नोट्स लिखाए गए हैं आप लिखेंगे, सबको ज़रूर से उनको पढ़िए और याद कीजिए, और जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छी तरीके से फिर से पढ़िए। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप खुद से करिए क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और वो आप खुद से कर सकते हैं, ओके। और बाकी जितने क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस हैं मैंने उसका आंसर आपको दे दिया है, आप वहाँ से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई एम गोइंग टू क्लियर इट, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उस डाउट को आपको क्लियर कर दूंगी, ओके। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, ऑफ कोर्स बार बार उसको पढ़िए। अगर कोई भी छोटा से छोटा कोई भी डाउट है आप मुझसे ज़रूर पूछिए, बिकॉज दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। सो वी आर गोइंग टू मीट सून विद द न्यू चैप्टर, ओके। टिल देन रीड दिस चैप्टर very carefully, okay। Thank you students।